Hey, what's up everyone? Raful here. Welcome back and thanks for joining in. And आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है because I noticed that there's plenty of stuff on YouTube regarding strategies, regarding setups, regarding risk management, regarding money management, all that. But not much content is out there on YouTube regarding how to handle your psychology and how to achieve that mindfulness so that whatever you have learned as a part of the trading process, you're able to execute it 100%. Correct? So if you talk to any traders, okay, any new traders, their main problem is they are not in the right mindset. तो इसका मैं रीजन बताता हूँ क्या होता है. यूजुअली ना हम लोग वी ऑलवेज कैरी सम अमाउंट ऑफ बैगेज फ्रॉम द पास्ट. इसका मतलब क्या है? कल आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया तो जो शेम रहता है, इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, वो जो शेम रहता है, अरे मेरे से बहुत गलती हो गया, मैंने इसे करना नहीं चाहिए था, मेरे को स्टॉप लॉस जल्दी लेना चाहिए था, वॉट एवर, those things, those emotions are still with you, right? और फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक आपने कुछ तुक्केबाजी ट्रेड ले लिए एंड इट वर्कड रियली वेल. आपका 10 रुपए का बाई हुआ, ऑप्शंस 100 रुपीज पहुंच गया एंड यू बुक्ड अ रियली गुड प्रॉफिट एंड यू कैरी दैट फॉल्स सेंस ऑफ विन विथ यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ऑल दीज इमोशंस जो रेसिड्यूअल स्टेट में रहता है तुम्हारे माइंड में, दैट those emotions will actually influence your decision making in the trading. If you're a system based trader, no problem at all. आपका algorithms रहते हैं, वो execute करते रहते हैं. There is not much for you to do. But if you're a discretionary trader, it's very important for you to reset your brain every single day and take each day as a fresh day. Correct? तो कल जो हुआ वो हो गया. आज हम लोग मार्केट में आए हैं, the markets are printing new candles, the markets are printing new data set, the markets are forming new patterns. You are supposed to react on this new data set. Correct? इसका hindrance क्या होता है? It's your mind. अगर आपका mind प्रेजेंट स्टेट में नहीं रहता तो योर ट्रेडिंग डिसीजंस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स. इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है. व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेडिंग डेस्क, यू आर सपोज्ड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो सिंस आई प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेना चाहता हूं. तो अ बैट्समैन, ही शुड नॉट थिंक अबाउट हाउ ही मिस्ड द प्रीवियस बॉल. ही शुड ऑलवेज रीसेट his mind and focus on the immediate next delivery, right? Similarly, as traders, we should forget whatever that has happened in the past and we should focus on the next one trade. So इसलिए जब मैं ट्रेडिंग शुरू किया था, I used to follow some exercises so that मेरे दिमाग ना वापस आ जाए, फोकस पे आ जाए. So I'm going to give you some simple exercises कैसे आप जहां पे बैठे हैं वहां पे कर सकते हैं. And this worked really well for me because I was always been able to focus on the current trade and not worrying about what has happened in the past and what might happen in the future. एंग्जाइटी होने दो या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का रेसिडुअल स्टेट, इमोशनल स्टेट होने दो, वो दोनों में कैरी नहीं करता था. एंड आई यूज्ड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो दैट हैज हेल्प्ड मी. तो मैंने सोचा कि चलो वो चीज आपके साथ मैं शेयर करूंगा. तो सिंपल चीज है. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न. आपका दिमाग ना हमेशा पैटर्न में काम करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप आपके स्क्रीन के सामने बैठे हैं एंड यू हैव टेकन अ ह्यूज लॉस द प्रीवियस ट्रेड. And now your brain is programmed to give you some sort of fear, to give you some sort of jitters. तो आप ट्रिगर दबा नहीं सकते. Correct? Even though you know that it's a very good risk reward trade, you kind of hesitate to pull that trigger, right? Or for example, if you have had a really good win the previous trade, आप over confidence में आके अगर आपका setup नहीं भी आया है, even then you'll start pulling the trades and that leads to over trading and that leads to you giving back all the profits that you have made. By following these exercises, you're always in the present state. Okay, that's very important. You're always in the present state. So first thing is, usually क्या करते हैं, if you're a right hander, the first thing that you can do to just break the pattern, आप जो माइंड का जो पैटर्न रहता है उसको तोड़ने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए आपको क्या करना रहता है? सिंपल. सुबह उठते हैं, if you're a right hander and if you're brushing with your right hand, try left hand. सुबह उठो, लेफ्ट हैंड से ट्राई करो एंड ऑब्जर्व हाउ मच फोकस दैट रिक्वायर्स. आप सोच सकते हैं कि ये क्या बहुत सिंपल चीज है यार, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ. ट्राई करके तो देखो, आपको पता चलेगा कि नॉर्मल टाइम पे आप ब्रश करते रहते हैं, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, आप कहीं कुछ सोचते रहते हैं, आप कल क्या हुआ उसके बारे में सोचते रहते हैं, आज क्या करना है उसके बारे में सोचते रहते हैं. तो योर बॉडी इज प्रोग्राम्ड. आपका बॉडी एंड आपका माइंड अपने आप को कैलिब्रेट कर चुका रहता है. सो यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न एंड कम आउट ऑफ इट. ओनली देन यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? तो आप ट्राई करके देखो. फर्स्ट थिंग इज, आप if you are a right hander, use your left hand to brush, and if you are a left hander, use right hand to brush. Second thing, when you are sitting in front of the trading desk, आप 9 o'clock बैठते हैं, तो of course like you have 15 minutes, right? तो इस 15 minutes में ना सिर्फ 2 मिनट लगेगा एक्सरसाइजेस करने के लिए. सिंपल चीज है. The first exercise I'm going to tell you is this.
द कॉम्बिनेशन ऑफ पिंकी फिंगर एंड अ थंब. सिंपल. आप हाथ लो, सिंपल हाथ लो, दोनों हाथ. नाउ अगर अब मैं बोलूंगा दोनों हाथ का थम्स को ओपन करना है, इट्स वेरी सिंपल, राइट. मैं कहीं पे भी कुछ भी सोच के मैं कर सकता हूं, राइट. अगर मैं बोलूंगा दोनों हाथ का पिंकी फिंगर को ओपन करना है, वो भी मैं आराम से कर सकता हूं. देखो, कुछ भी कहीं पे भी देख के मैं कर सकता हूं. बट इफ आई टेल यू टू ओपन अ थंब ऑफ वन हैंड एंड अ पिंकी फिंगर ऑफ द अदर एंड देन वाइस वर्सा, इट नीड्स फोकस. अब थोड़ा भी फोकस हटाओगे, दिस गोस आउट ऑफ सिंक. देखो देखो, दिख रहा है. मैं थोड़ा भी आउट ऑफ फोकस हो जाता हूं ना, दिस विल नॉट वर्क. सिंपल. ट्राई दिस. दिस इज द सिंपलेस्ट वन. द नेक्स्ट थिंग इज फोर फिंगर एंड थंब. सिंपल. देखो, मैं अगर थोड़ा भी फोकस हटता मेरा, तो इधर दोनों थंब ओपन हो जाते हैं या दोनों पिंकी फिंगर ओपन हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द पैटर्न, तो आपका फोकस आना चाहिए एंड दैट ब्रिंग्स योर माइंड टू द प्रेजेंट स्टेट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसा है? दिस 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 दिस, राइट. नेक्स्ट, ये काफी डिफिकल्ट होता है. ये कैसा है? You have to keep rotating your fist in the forward direction and the other thing you have to rotate in the backward direction. हमेशा आपका बॉडी क्या करता है पता है? आप ऐसे रोल करते रहते हो, ये भी आगे रोल होता है. बट ट्राई रोलिंग इट द अदर वे. देखो, इट्स नॉट दैट सिंपल. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस. जब आप ये 4-5 3 एक्सरसाइज करते हो ना, जस्ट फॉर लाइक 1 मिनट ईच, आपका माइंड बाकी सारे चीजों को भूल के प्रेजेंट में आ जाता है. then it's very easy for you to execute your systems, to execute your setup. आप प्रीवियस डे में क्या हुआ था वो सोच भूल जाओगे एंड आगे क्या होने वाला है वो एंग्जाइटी भी भूल जाओगे. यू कम इन द प्रेजेंट मोमेंट. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग. देखो, मैं मानता हूं ट्रेडिंग इज लाइक एनी परफॉर्मेंस स्पोर्ट. ठीक है, यू आर लाइक अ क्रिकेटर, यू आर लाइक अ बैट्समैन. बैट्समैन को पता नहीं होता कि अगले बॉल शॉर्ट बॉल आने वाला है या फुल टॉस आने वाला है या गुड लेंथ बॉल आने वाला है. तो यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट टू एक्चुअली प्ले इट. अगर आप प्री मेडिटेटेड हो, अगर आप प्री ऑक्यूपाइड हो, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, जस्ट लाइक हाउ द बैट्समैन फेल, विल ऑल्सो फेल. तो होपफुली दीज एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू. आप ट्राई करो, पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि कितने एक्सरसाइजेस आप कर पाए. ठीक है, फर्स्ट टाइम में कितने एक्सरसाइजेस आप कर पाए. प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा. When you practice this, then you have to find something else, like something challenging, so that your focus gets again in the present moment. आप कमेंट्स में बताओ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितने एक्सरसाइजेस को कर पाए. आई जस्ट वांट टू नो. ऑलराइट, होप दिस हेल्प्ड एंड आप ट्राई करो. ठीक है, किसी चीज को ना डिस्कार्ड करने से पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज जो भी कई लोग मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं एंड दे जस्ट डू इट फॉर 1 मंथ एंड दे से ब्रो लाइक ये एक्सपायरी काम नहीं किया ब्रो, इस बार मतलब टीटा डी के नहीं मिला. भाई, कोई सिस्टम का एक एक्सपेक्टेंसी आता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैं कंटिन्यूसली मेरा मंथली पीएनएल पोस्ट करते आ रहा हूँ, हर एक्सपायरी पे मेरे वीडियोस डालते आ रहा हूँ. तो देयर आर डेज व्हेन आई हैव आल्सो टेकन लॉसेस. तो पॉइंट इज, जो भी सिस्टम है, जो भी आप कुछ नई चीज को सीखते हैं, इंप्लीमेंट इट एंड डोंट डिस्कार्ड इट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसको थोड़ा लंबे टाइम तक ट्राई करो. ठीक है, इट्स नॉट गोना टेक अ लॉट ऑफ योर एफर्ट. तो ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा एंड होप दिस हेल्प्स बिकॉज इट रियली हेल्प्स. ठीक है, स्ट्रैटेजी, सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब है. ठीक है, वो सब है, वो अपनी जगह है. अगर आपका माइंडसेट ही राइट प्लेस में नहीं है, अगर आप प्रेजेंट स्टेट में ही नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है. राइट, या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय.